Very good morning, 11th class students. I am Vikas with your subject economics, and you're most welcome in your online classes, subject economics. Students, today I will continue your chapter 2, collection of data, and I hope you have seen your yesterday video and understand the concept. In yesterday, I was discussed that some topic related to collection of data, that is how can collect the data, and primary data and secondary data, difference between both of them, and how can prepare a good questionnaire, quality of a good questionnaire, and different method of collecting data. Or you can say we have take method of collecting primary data and source of data. We have two type of data, that is internal source and external source. In external source we have also two part, that is published and unpublished. In published data, we have taken various field like government publication, RBI bulletin, etc. And at an international level, that is WTO, ILO, WHO, World Bank, International Monetary Fund, all these institute or organization give published information or published data. Unpublished source of data, which data are in office file or records. I hope these topics clear to all of you, and today your topic is methods of statistical inquiry. Inquiry means the area from we can collect the data. I hope this is clear. Methods of statistical inquiry. So students, in methods of statistical inquiry, there are two methods in statistical inquiry. First is census method, which is a very most popular or most important methods in statistical for collection of data. Students, census methods means in a census method all the unit associated, these the keywords of the census method, that is in a census method all the units associated with a particular problem, यानी जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी सारी यूनिट एसोसिएटेड होगी. I want to explain with the example. Suppose that you have collect the data in a particular area. किसी भी एरिया से हमें डाटा की नीड्स है. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. उस एरिया में जितने भी पर्सन होंगे वो पर्सन यहाँ पे यूनिट बोल रहा है, और वो पर्सन इंफॉर्मेशन आप हर एक पर्सन से लेंगे. हर एक पर्सन आर सिचुएटेड और आर स्टडीड इन दिस मेथड. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सपोज दैट आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपको डाटा कलेक्ट करना है ऑन द स्मोकिंग. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. एंड आई वांट टू get a information related to smoking in Modinagar city. So you have to go and you have to collect the data every individual person. आप हर एक पर्सन के पास जाओगे और देन आप डाटा कलेक्ट करोगे कि मोदीनगर सिटी में कितना लोग स्मोक करते हैं और कितना स्मोक नहीं करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन सेंसस मेथड आप हर एक पर्सन पे जाओगे. किस पर्सन पे? उस एरिया के पर्सन पे जहां पर डाटा सिचुएटेड है, जहां पर आपका इंक्वायरी फील्ड है. फॉर एग्जांपल, आपके इस एग्जांपल में मोदीनगर आपका इंक्वायरी फील्ड है, और इस मोदीनगर में जितनी भी यूनिट है यानी जितने पर्सन है, ऑल द यूनिट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर स्टडीड.
इट इज क्लियर। आई हैव ए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग। जब भी गवर्नमेंट पॉपुलेशन की काउंटिंग कराती है तो इसमें आप सैंपल मेथड यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज ए सेंसस मेथड। व्हाई इट इज सेंसस मेथड यूज इन अ पॉपुलेशन, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन? बिकॉज इन सेंसस मेथड, बिकॉज इन सेंसस मेथड ऑल यूनिट एसोसिएटेड, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, हर एक पर्सन से डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन को काउंट करना इज अ वेरी वेरी सुटेबल एग्जांपल ऑफ सेंसस मेथड। क्लियर? सेंसस मींस काउंटिंग होता है, इट इज क्लियर। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग, तो काउंटिंग ही सेंसस मेथड है यहाँ पर, और इट इज ए मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड इज सैंपल मेथड। सैंपल मेथड जैसे कि इसकी नाम से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, सैंपल लेना। इन अ सैंपल मेथड डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप में से क्या कर लेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम, कुछ सैंपल ले लेते हैं, फ्यू आइटम्स काउंट करते हैं, और इसमें फ्यू काउंट नहीं करेंगे, उस ग्रुप के हर एक पर्सन को या ग्रुप में जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब एसोसिएट होंगी। दिस इज अ वेरी वेरी मेन डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। इन सेंसस मेथड ऑल यूनिट एसोसिएटेड, and in sample method collect about the sample on a group of items taken from the population. What do you mean by population? Students, here population means not total population of a country. Population means those items which are associated in your inquiry field. If we are talking about we have to collection of data in मोदीनगर सिटी, तो मोदीनगर सिटी की ही पॉपुलेशन होगी, उसी को आप पॉपुलेशन बोलेंगे। सपोज दैट हमें काउंट करनी है एनिमल्स, तो आप उन एनिमल्स को भी बेटा पॉपुलेशन बोलोगे। सपोज दैट हमें किसी ग्लोबल स्कूल के टोटल ट्री काउंट करने हैं, तो वो पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन मीन्स वो सारी, उस एरिया की वो सारी यूनिट जिसको हमें काउंट करना है। आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। तो सपोज दैट आपको क्या है कि किसी एरिया में से सैंपल डाटा लेना है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, उस एरिया की सारी यूनिट। अगर उस एरिया की आप सारी यूनिट काउंट करते हैं तो इट विल बी सेंसस मेथड, एंड इन सैंपल मेथड उस सारी पॉपुलेशन में से, उस सारी एसोसिएटेड यूनिट में से हम फ्यू आइटम्स ले लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। In a sample method, data is collected about the sample on a group. पूरे ग्रुप में से एक सैंपल लेना, group of item taken from the population for examination and conclusion are drawn on this basis, their basis. आप जो एग्जामिन निकालोगे उसी के बेसिस पर सब पे अप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल सुनिए इसका। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कोई एक पर्सन आया, देखो दोनों के मेथड देखो, कोई एक पर्सन आया और उसने 10th क्लास से डाटा कलेक्ट करना है, तो दो पर्सन आए हैं, दोनों पे डिफरेंट है। एक को सेंसस मेथड यूज करना है। सेंसस मेथड क्या करेगा, 10th स्कूल में 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली कलेक्ट करेगा। या तो वो हर बंदे से पेपर लेगा, या वो हर बंदे को अपने रूम में बुला के 1 by 1 रोल नंबर वाइज क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वाइवा होता है। तो ये सेंसस मेथड है। व्हाई सेंसस मेथड? बिकॉज ऑल यूनिट, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास, ये पॉपुलेशन होगी। इसमें सारे बच्चे इंक्लूड होंगे, सारे स्टूडेंट इंक्लूड होंगे। इन विच मेथड? सेंसस मेथड। आई होप दिस इज क्लियर। अब वही पर्सन, उसको सैंपल मेथड से लेना है। क्लास में गए, इट इज क्लियर। क्लास में जाने के बाद देन आफ्टर उसने एक इस कोने से स्टूडेंट से पूछ लिया, एक उस कोने से और एक इस कोने से, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है क्लास में, 3-4 बच्चों से उसने पूछा और पूरी क्लास पे एग्जामिन कर दिया। फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। पूरी क्लास पे कि यस ये क्लास बहुत अच्छी है या ये क्लास बहुत बैड है, गुड है या बैड है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, सैंपल लिया, उन्होंने 3 या 4 बच्चों से पूछा और पूरी क्लास पे वो अप्लाई कर दिया। दिस इज नोन एज सैंपल मेथड। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट वीट परचेज करने जाते हैं फार्मर के यहाँ से, क्या करते हैं, वीट का एक पूरा ढेर पड़ा हुआ है, उसमें से थोड़े से दाने उठा के देखते हैं, एंड देन आफ्टर कि ये वाला अच्छा है और ये वाला खराब है। तो क्या किया हमने, हर एक दाने को चेक नहीं किया। इट इज नॉट पॉसिबल। इन दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज ए सैंपल मेथड। थोड़े से आपने लिए वीट के जो दाने होते हैं और देन आफ्टर आपने सारी ढेर पर या सारे वीट पर अप्लाई कर दिया कि यस दिस इज ए दिस क्वालिटी इज दिस, जिसकी यह क्वालिटी है। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। एंड
अ सैंपल इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? पूरी यूनिवर्स और पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है। सो यू कैन से सैंपल इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स और population. I hope this is clear to students. You can say method of statistical inquiry. There are two methods, that is census method and sample method. I hope it is clear. Yes. In next topic, we will study different methods of sampling. Different method of sampling. It is clear to students? Sample लेने के different methods. So students, we will discuss these methods in heading by heading and I will explain. So for the heading I will pause your video, then after I will explain one by one. Students, in different methods of sampling we have these methods. By the help of these methods we can calculate sample, and in this method we can easily calculate sampling. First is deliberate or purposive sampling. As you are seeing that purposive sampling. In the purposive sampling, we can collect sample according to our purpose. For example, suppose that in particular field 2000 population, and we get out of 2000 20 population कितनी है? 2000. This is clear, and we need suppose 20%. It is clear? This is total person और this is sample. यानी हमें 2000 की भीड़ में से कितने लेने हैं? केवल 20. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पर्पजिव सैंपल हम अपने पर्पज के अकॉर्डिंग ले लेंगे, यानी जो हमें मन करे. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. सैंपल ले रहे हैं, उन 20 से हम इंटरव्यू लेंगे या क्वेश्चन आस्किंग करेंगे और उन 2000 पे अप्लाई कर देंगे कि ठीक है ये 2000 स्टूडेंट्स हैं या ये 2000 वर्कर हैं, उनका आईक्यू लेवल ये है. आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स. 2000 बंदे हैं, उन 2000 में से हमें केवल 20 का सैंपल लेना है. अब वो 20 कौन से लें? पर्पजिव मेथड में आप कोई भी ले सकते हो. सपोज दैट आपने 1 to 2000 रोल नंबर ले लिए और उनमें से जो आपका मन करे कि पहले ये 10 आ जाए, फिर 20 आ जाए, फिर 100 आ जाए, एज यू विश. दिस इज नोन एज डेलिब्रेट और पर्पजिव सैंपलिंग. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन, रैंडम सैंपलिंग. इन रैंडम सैंपलिंग all unit have equal chance. In random sampling, all unit have equal chance. Under this method, the selection of items for a sample depend upon chance. Every item of the universe means वो population जिसमें से हमें data collect करना है. In random sample, every आइटम ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. यानी जितने भी, जैसे अभी 2000 का अगेन एग्जांपल लिया, इस 2000 में से क्या है कि हर एक का इक्वल चांस होगा आने का. वो कैसे होगा? हमको ब्लाइंडली उनमें से लेना है. ब्लाइंडली हाउ कैन टेक ए ब्लाइंडली? भी या तो आप 2000 पर्ची बना लो, जैसे आप लोग क्लास में खेलते हो लॉटरी मेथड. इट इज क्लियर टू स्टूडेंट. और 2000 में से 20 अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकाल लीजिए, कोई भी एट रैंडम, ब्लाइंडली, बिल्कुल, बिकॉज इट इज रैंडम सैंपल. और रैंडम में जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को टॉस किया, टॉस करते हैं तो कितना चांस होता है? प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी आपने 1/2, आइदर इज हेड और आइदर इज टेल. 50% की प्रोबेबिलिटी होती है. तो चांस किसका है? 50% हेड का और 50% टेल का, यानी बोथ हैव इक्वल चांस. In the random sample, all universe have equal chance. It is clear to student. किसी भी एक बैग में
हमने या किसी एक मटके में आपने बॉल डालनी है, क्लियर, और ब्लाइंडली हमें 4 बॉल निकालनी है। अब उस बॉल में से क्या होगा, किसी भी कलर की आ सकती हैं, ऑल बॉल्स हैव इक्वल चांस। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट। सो इन 2000 universe or population or total associated unit we have take blindly random sample। कितने लेने हैं, जितने भी हमें चाहे। सपोज दैट हमें 20 का डाटा लेना है तो 20 में हम ये नहीं बोलेंगे कि केवल यही आए, इट विल बी ब्लाइंडली। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट। इन दिस सिचुएशन लॉटरी मेथड इज अप्लाई। या तो आप पर्ची बनाएं और पर्ची को किसी भी एक कंटेनर में डालें, देन आफ्टर उनको मिक्सअप करें और ब्लाइंडली उसमें से पर्ची निकाल लें, जो भी आ जाए। दिस इज ए रैंडम सैंपलिंग। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल और इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप लोग भी रैंडम सैंपल यूज कर सकते हो, करते भी हो आप लोग। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, मिक्स सैंपलिंग और स्टारफाइड सैंपलिंग। स्टूडेंट्स, मिक्स सैंपलिंग इज अ मिक्सचर ऑफ देम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। हाउ कैन मिक्सचर? इन दिस फील्ड सपोज दैट वी नीड अगेन we have 2000 population। 2000 population है और इस 2000 population में से क्या करेंगे हम? हमें क्या करना है, 20 की नीड्स है। कितने लेने हैं? 20 आइटम्स एज ए सैंपल। आई थिंक दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 2000 वी हैव 20 सैंपल। अब आप कैसे लेंगे? दिस इज अ मिक्स सैंपलिंग, इन दोनों का मिक्स। पहले तो पर्पजिव ऐड करेंगे। पर्पजिव में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजायर। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू डिजायर इसके 100 के ग्रुप बना दिए। 100 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 100 का ग्रुप। कितने ग्रुप बनेंगे? 20। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 2000 20 ग्रुप आपने 100 के बनाए और इन 20 ग्रुप में से कैसे बनाए? पर्पजिव सैंपल, अपने अकॉर्डिंग कि ये यहां से ये 20, ये 100 इस वाले ग्रुप में आ जाए, ये वाले 100 इसमें आ जाए, तो पर्पजिव हुआ ना। हमने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग 100 के ग्रुप बनाए। देन आफ्टर वी यूज रैंडम सैंपलिंग। अब इस 100 में से कितने चाहिए हमें? 100 में से कोई भी 1। ये ब्लाइंडली हम चूज करेंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? नहीं आया? इन दिस मेथड मिक्स सैंपलिंग वी हैव यूज बोथ ऑफ सैंपल, पर्पजिव सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग। पर्पजिव और डेलिब्रेट सैंपल आर सेम थिंग। तो डेलिब्रेट मींस पहले पूरे डाटा को इक्वल पार्ट में अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग हमने ब्रेक डाउन किया। 2000 का एग्जांपल लिया। इन 2000 पॉपुलेशन वी डिवाइडेड बिकॉज वी नीड्स द 20 आइटम्स। हमें 20 आइटम्स लेने हैं तो 2000 पॉपुलेशन को 100 के ग्रुप में हमने ब्रेक कर दिया। इट इज क्लियर। कितने ग्रुप बनेंगे? ऑब्वियसली 20 ग्रुप्स। अब क्या करना है, उन 100 में से एट रैंडम कोई भी एक ले लेना है। कितने आइटम्स आ गए? 20। और हमें नीड्स कितनी की थी? 20 की। समझ आया स्टूडेंट्स? यू कैन सी अगेन 3। इन दिस सिचुएशन एनी वन, हम कोई भी 20 अपने डिजायर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कोई भी 20 अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर। इसमें कोई भी 20 आ सकते हैं रैंडम सैंपलिंग में। ऑल यूनिट्स हैव इक्वल चांस। क्लियर? कोई सिंपल नहीं। और इसमें दोनों का अप्लाई किया। पहले उसको एक ग्रुप में डिवाइड किया और फिर ग्रुप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, देन आफ्टर ग्रुप में से रैंडम सैंपलिंग ले लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसमें फॉर्मूला लगेगा, अंडर दिस मेथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल पॉपुलेशन एट सैंपल सेलेक्टेड बाय टेकन एवरी एन आइटम फॉर द लिस्ट। यानी पहले आपके पास लिस्ट होगी और लिस्ट के बाद क्या फॉर्मूला लगा दोगे? अगेन सपोज दैट आइटम विल बी, फॉर्मूला लगेगा आइटम्स इज इक्वल टू साइज ऑफ यूनिवर्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल। अब कितने आइटम्स चाहिए? आइटम्स, हियर इज आइटम्स इज इक्वल टू, सपोज दैट साइज ऑफ यूनिवर्स कितना है? कितना भी हो सकता है। सपोज दैट 1000, हमारे पास 1000 पॉपुलेशन है। साइज ऑफ सैंपल कितने चाहिए हमें? 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। अब आपको क्या करना है? 100 आया। इस सिचुएशन में क्या है कि हर एक 100%
100वां पर्सन हम ले लेंगे, यानी रोल नंबर में डिवाइड किया, पहले 1 आ जाए, देन 100 आ जाए, देन 200 आ जाए, देन 300 आ जाए, देन 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। यानी कितने बंदे आ गए टोटल? 10। और 10 ही आपको आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी। साइज ऑफ सैंपल कितना था हमारा? 10। तो ये एक सिस्टम है, इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं और बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट सैम्पलिंग। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? और फॉर दिस मेथड सैम्पलिंग इज वेरी वेरी इजी। तो दिस इज अ सैंपल मेथड। क्लियर? सारी यूनिट हम कहीं भी एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ही यूनिट ले रहे हैं। इसमें हमने 20 ली थी, फॉर एग्जांपल मे बी 50 ले सकते हैं। इसमें भी आपने 20 50 ली थी, इसमें भी आपने 20 50, इसमें आपने 10 लिए। स्टूडेंट दिस इज सैंपल मेथड। और अगर सारी यूनिट एसोसिएट हो जाएंगी इट विल बिकम सेंसियस मेथड। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। In multi-stage sampling, students data will under a different stage. For example, suppose that we need a 20 school of our state. पूरे स्टेट से 20 स्कूल लेने हैं हमें। अब इतना बड़ा यूपी है, उसमें से 20 स्कूल कैसे लेंगे? अब हम क्या करेंगे कि स्टेट को डिवाइड कर देंगे। स्टेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सपोज दैट पूरे स्टेट को सपोज दैट 70 या 80 मान लीजिए। सपोज दैट 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 80 नहीं 79 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन मैं 80 बता रहा हूं। सपोज यूपी में 80 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप क्या करोगे? उसको 80 को 20 के ग्रुप में डिवाइड कर लोगे। इट इज क्लियर? 80 ग्रुप होंगे, 80 डिस्ट्रिक्ट हुए आपके। 80 को आपने डिवाइड किया 20 के ग्रुप में, 20 20 20 और 20। दिस इज क्लियर? अब इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से हमें सपोज दैट हमको चाहिए 5 स्कूल इसमें से लेने हैं, 5 स्कूल इसमें से, 5 स्कूल इसमें से और 5 स्कूल इसमें से। अब कैसे लेंगे? उस डिस्ट्रिक्ट में से सारे स्कूलों में से 5 स्कूल ले लेंगे। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में से, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट ये हुए, इन 20 में से कोई भी एट रैंडम 5 स्कूल ले लेंगे। इन 20 में से कोई भी एट रैंडम, इसमें से कोई भी, या स्टेज बना ले लेते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखिए आप। सपोज दैट आपके स्कूल में से हमें सैंपल लेना है स्टेज वाइज। तो हम क्या स्टेज करते हैं? पहले पूरे स्कूल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। नर्सरी केजी फर्स्ट एक तरफ हो गया, फिर देन आफ्टर नर्सरी केजी के सेक्शनों में से हम ले लेते हैं। फर्स्ट टू 5th अलग हुआ, 6 to 8 अलग हुआ और 9 to 12 अलग हुआ। यानी आपने पूरे स्कूल को ब्रेक कर लिया और देन आफ्टर आपने फिक्स कर दिया कि हम इसमें से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट। तो दिस इज ए मल्टी स्टेज, यानी आप स्टेज बना लेते हो 1 by 1 कि इस स्टेज में से इतना, इस स्टेज में से इतना, और बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेज वी कैन इजिली कैलकुलेट डाटा और टेकन सैंपल। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स? इन मल्टी स्टेज सैंपलिंग वी हैव टू डिवाइड कर लेते हैं हम पूरे ग्रुप को 1 by 1 स्टेप में। भाई जैसे एक स्टेज ये हुआ, एक स्टेज ये हुआ, एक स्टेज ये हुआ, और उन स्टेज में से डाटा ले लेते हैं। लास्ट वन, कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग इज वेरी इजी। इन कोटा सैंपलिंग वी हैव फिक्स अ क्वांटिटी और कोटा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपको टोटल पॉपुलेशन में से डाटा चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं? उस टोटल पॉपुलेशन में आप लोग करते हो कि एक क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि जैसे हमें 100% चाहिए, बट 100% वो बिजनेसमैन चाहिए जिनकी एज 50 से अबव है। तो ये कोटा फिक्स कर दिया आपने। क्या कि आपको 50 बिजनेसमैन से डाटा पूछना है, और वो कौन से 50 में बिजनेस होने चाहिए? जिनकी एज 50 अबव हो। तो ये क्या हुआ बेटा? क्वांटिटी फिक्स। ये भी आप ही कोटा फिक्स करोगे। इट इज डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम्स। I hope this is clear to students. These method related to sampling. आप किसी भी मेथड से सैंपल ले सकते हो, और वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम्स पे कि आपको टीचर ने या आपको किसी कंपनी के ओनर ने, जब आप जॉब कर रहे होंगे, कौन सा डाटा कलेक्ट करने के लिए दिया है। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। पर्पजिव सैंपल अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, रैंडम सैंपलिंग जिसमें सारी यूनिट एसोसिएट हो, जिसमें सारी यूनिट इक्वल चांस रखती हो। ब्लाइंडली आप उसमें से रैंडम सैंपलिंग लोगे। मिक्स सैंपलिंग और स्टारफाइड सैंपलिंग, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेलिब्रेट और रैंडम सैंपलिंग। पहले पूरे ग्रुप को ब्रेक करते हो, फिर उसमें से एक ग्रुप में से एट रैंडम लेते हैं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो
जितना भी ग्रुप है, जितना टोटल पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय सैंपल, जितना भी आपको सैंपल चाहिए। मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हम स्टेज डिसाइड कर लेते हैं कि इस स्टेज में से इतना लेना है, इस स्टेज में से इतना लेना है, उस स्टेज में से उतना लेना है। और कोटा सैंपल में कोई भी फिक्सेशन ऑफ कोटा। आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। In this chapter, we have a last and very small topic. This is NSSO. Census of India and NSSO. Census India and NSSO is a National Sample Survey Organization. Students, Census of India and National Sample Survey Organization (NSSO) are major agency at national level. The Census of India provides complete information about demographic condition. What do you mean by demographic condition? How many person in society, death rate, birth rate, sex ratio, number of male and female, and above poverty line, below poverty line, etc. So National Sample Survey Organization are major agency at national level. The Census of India provide complete information about demographic condition of the country. After independence, you can say 1947. The first census was held in 1951. In 1951, the first census was held. यानी आफ्टर 1947, 1951 में फर्स्ट बार आपकी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट की गई है। इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन 1951. इट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन लाइक सच एज साइज, वेरियस इंफॉर्मेशन from population like size, density, literacy, sex ratio, birth rate and death rate. So students, after the independence in 1951 the first census was held in India. इंडिया में क्या हुआ 1951 में, बिकॉज 1947 में यू गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट। देन इन 1951 द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड, यानी कंट्री की पहली बार पॉपुलेशन काउंट हुई। कब हुई? इन 1951। और किसने की? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। एनएसएसओ इज द सेंसस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एक ऐसा सेंसस है। सेंसस मीन्स जिसमें सारी पॉपुलेशन इंक्लूड हो, जिसमें टोटल यूनिट एसोसिएट हो। तो एनएसएसओ ने 1951 में फर्स्ट सेंसस काउंट किया और उसमें वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन लाइक
टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स किसी पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, लिटरेसी रेट, हाउ much person are or how much population are able to read and write any language. Literacy means read and write any language, यानी जिस पर्सन पे read and write लिखना और पढ़ना आता है कोई भी एक लैंग्वेज, आइदर इज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कोई भी, तो वी कैन से दैट ही और सी इज लिटरेट. सेक्स रेशो, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है, बर्थ रेट and death rate. So this information collected by the NSSO in 1955. So this is a last topic of this chapter, that is NSSO. NSSO means National Sample Survey Organization. So students, this chapter is finished, and tomorrow I will or day after tomorrow, because tomorrow is Sunday, and in Monday we will start chapter 3rd. Chapter 3rd is a organization of data. I hope this is clear to students. आप लोगों ने सीखा कि how can collect the data, हम मार्केट से डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं. So thank you so much students. Stay home and safe.